نوٹیرو میں دریائے سندھ بڑا پتن کے مقام پر ایک شخص ڈوب گیا۔ 30 سالہ غلام قادر مچھلی کا شکار کر رہا تھا۔ موقع پر موجود لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ قصور کے تھانہ اے ڈویژن پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی۔ بلال عرف ٹولی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ ملزموں سے 1 لاکھ روپے، 8 مسروقہ موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ دوران تفتیش ڈکیتی کی 6 موٹر سائیکل چوری کی 8 وارداتوں کا انکشاف۔ چشتیہ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ غلام نبی شیخ سے 1 من بھنگ برآمد کر لی گئی۔ ملک ارشد سے 505 گرام چرس برآمد۔ ڈی ایس پی فیاض الحق کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسسٹنٹ کمشنر فیاض احمد جتالہ کی سنجے پور میں سبزی فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ گراں فروشی پر متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی دکاندار کو زائد قیمت پر سبزیاں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اوکاڑا کے علاقے غازی آباد میں گٹر ابل پڑے۔ گندا پانی گلیوں بازاروں میں بہنے لگا۔ شکایات کے باوجود میونسپل کارپوریشن کا عملہ غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوا۔ تعفن وبائی امراض کا باعث بننے لگے۔ گندے پانی نے نمازیوں کا مسجد تک جانا محال کر دیا۔ اور نالا خرد میں نجی ویلفیئر کونسل کی خصوصی کاوش۔ طارق شاہ قبرستان روڈ کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے انجینئر اعظم بھٹی کا شکریہ ادا کیا گیا۔ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تقریب۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ فضا سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مزید جانتے ہیں سعید رسول متنی کی اس رپورٹ میں۔ ماہ ربیع الاول ایک مقدس مہینہ ہے جو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے، آپس میں پیار، محبت، یکجہتی اور امن قائم رکھنے کا درس دیتا ہے۔ یہ کہنا تھا ڈیرہ اسماعیل خان کے سٹی میئر عمر امین خان گنڈاپور کا، جو آج جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں سرکٹ ہاؤس ڈیرہ کی سالانہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں علماء اکرام، اکابرین شہر، سیاسی شخصیات، معززین شہر اور اہل سنت والجماعت کے بزرگان نے شرکت کی۔ خطاب کے دوران مزید ان کا کہنا تھا کہ امین برادران نے ہمیشہ اپنے حلقے کے ہر فقہ، ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم کر رکھا ہے۔ محرم ہو، کرسمس ہو، عیدین ہو یا عید میلاد النبی، ہم ہمیشہ تمام مسالے کے ساتھ ہم آہنگی کے قائل ہیں۔ عوام کی خدمت کی ہے، سارے ضلع کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ دعا ہی کر سکتے ہیں، کوشش ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ نقصانات یہ لیول سے لوگوں نے تھے ہی۔ اللہ پاک سے میں ہمیشہ یہ دعا کریں یا اللہ تو غیب کی ساری مدد کرے، سے انسان دے بس یہ نقصان پورا کرنے نہیں۔ تو میں ہر اپنے برا دوست کرے درخواست کرے سمجھا اپنے ہر پروگرام خصوصی طور پہ ان سیلاب زدگان نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان دے بلکہ پورے پاکستان دے جتنے نقصان انہوں سے خصوصی دعاؤں کراؤ تاکہ اللہ کی ذات۔ سٹی میئر ڈیرہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے نظام کو بہتر بنایا، مگر اب بھی ہم میں کچھ کمیاں اور کچھ کوتاہیاں موجود ہیں اور ہمیں مل جل کر ان کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا۔ عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہونے والی اس پروقار تقریب کے اختتام پر مولانا سراج خلیل نے پورے ملک اور خصوصاً ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے اجتماعی دعا کرائی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید رسول مدنی، کوہ نور نیوز، ڈیرہ اسماعیل۔ کھپرو کے محلہ غریب آباد میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ میر پور خاص سے مولانا محمد شریف سیدی نے خصوصی خطاب کیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالرزاق راجپوت کی اس رپورٹ میں۔
जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में गरीबाबाद की नूरानी मस्जिद में एक अजीमुशान महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। महफिल मिलाद में कारी मोहम्मद शरीफ कादरी, अली अत्तारी, असगर अत्तारी समेत दीगर नात ख्वानों ने हजूर की शान में हदिया नात पेश की। जबकि मौलाना शिराज अली सिकंदरी मिरपुर खास से आए हुए मौलाना मोहम्मद शरीफ सैयदी ने खसूसी खिताब किया। न हुजूर का जिक्र करने से हुजूर का जिक्र बढ़ना है, न किसी के घटाने से घटना है। फिर मेरे जैसा सादा आदमी पूछ ले, मुफ्ती साहब जब बढ़ाने से बढ़ना नहीं है, घटने से घटाने से घटना नहीं है, फिर करते क्यों है? मैंने कहा तेरे मेरे बढ़ाने से उनका नहीं बढ़ना, हमारा काम बढ़ जाना है। इनका कहना था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आकाए दो जहां सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। हजूर की आमद से दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ और हर तरफ नूर ही नूर छा गया। हमें भी चाहिए कि हम भी आका के बताए हुए रास्तों पर अमल पेरा हो, जिससे हमारी आखिरत संवर सके। ये दिन हमारे लिए ईद से भी बड़ा दिन है। महफिल मिलाद के प्रोग्राम में मुफ्ती अहमद अली सिकंदरी, मोहम्मद रिजवान सिकंदरी, कारी अली हसन अत्तारी समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद महफिल मिलाद में मौजूद थी। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ। लसपेला के साहिली इलाके डाम बंदर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन शाहिद मदनी अतारी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसाल हुस्न और जमाल अता फरमाया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम बलूचिस्तान में हाजिर हैं और आज इसकी जो बंदरगाह है उसमें जुलूस मिलाद का सिलसिला हुआ। कश्तियों में आशिकान रसूल ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरहबा के नारे लगाए और जुलूस मिलाद में शिरकत की। मकसद यही था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में मज़ीद बढ़े और हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फरामीन पर अमल करने वाले बन जाएं। आले टाम और बलूचिस्तान के कई शहरों से भी इस्लामी भाई आए, कराची से भी कई इस्लामी भाइयों ने इस जुलूस के अंदर शिरकत की। अल्लाह पाक हम सब का यहाँ पर हाजिर होना, डाम की इस बंदरगाह के अंदर जो ये जुलूस निकला है इसकी बरकत से अल्लाह पाक सबके घरों पर मेहरबानी फरमाए, सबके कारोबार में बरकत फरमाए, सबकी दुनिया भी अच्छी फरमाए, आखिरत भी अच्छी फरमाए। अल्लाह पाक हमेशा के लिए राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम निकाला गया। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने जो है इसमें शिरकत की और कई आशिकान रसूल इसमें शरीक थे। अल्लाह पाक सबकी शिरकत को कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस। फैज़ान मक्का से शुरू होने वाला जुलूस फ़कीराबाद पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। मज़ीद जानते हैं अपर सवाद से मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। फैज़ान इस्लामिक स्कूल दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने भी शिरकत की और फ़िज़ा सरकार की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। जुलूस का एहतमाम फैज़ान इस्लामिक स्कूल के एडमिन मोहम्मद इरफान अतारी ने किया था। उन्होंने पूरे स्कूल को झंडियों से सजाया हुआ था और स्कूल में भी बच्चे सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाते रहे और स्कूल से जुलूस की शक्ल में फैज़ान मक्का आए, जहां दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जिनमें मोहम्मद तौसीफ़ रज़ा अत्तारी दावत इस्लामी के निगरान पेशावर डिवीज़न, कामरान अत्तारी सूबाई ज़िम्मेदार, शहजाद अत्तारी निगरान ताजरान, डॉक्टर खुरम शहजाद, पीर सैयद हुसैन अल कादरी, सैयद मोहतरम शाह बाबा जी और दीगर मुबल्लिगीन ने भी शिरकत की। मुबल्लिगीन मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते रहे। जुलूस फैज़ान मक्का से शुरू हुआ और फ़कीराबाद के पूरे बाज़ार से होता हुआ वापस इसी जगह इख्तिताम पजीर हुआ। मोहम्मद मुअत्तर अली, कोहिनूर न्यूज़, अपर सवा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हबीबाबाद से मोहम्मद इकबाल की इस रिपोर्ट में।
حبیب آباد بانی پریس کلب آباد حافظ شفاقت زرگر کے گھر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میں تلاوت قرآن پاک قاری تحسین قادری نے کی، جبکہ نقابت کے فرائض محمد مقصود احمد ڈوگر قادری نے سر انجام دیے۔ محفل میلاد مصطفیٰ میں حبیب آباد کی شان حضرت علامہ مولانا قاری مشتاق احمد قادری صاحب نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا کو شرف انسانی کا حقیقی اندازہ ہوا۔ انسانی زندگی کا ہر گوشہ اس سراج منیر کی تشریف آوری سے جگمگانے لگا۔ والدین کی عظمت پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں اور اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اس کی قدر کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس موقع پر فخر حبیب آباد شفقت رسول قادری اور فلک شیر قادری نے نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اقبال، کوہ نور نیوز، حبیب آباد۔ عشرہ شان رحمت للعالمین کے حوالے سے پروگرام سرکاری اسکول کے طلباء نے تقریری مقابلوں میں حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں بھالیا سے فاروق چودھری کی اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے عشرہ شان رحمت للعالمین کے سلسلے میں پھالیہ میں بھی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنمنٹ اسکول کے طلباء نے تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول اور تقریری مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ مقابلہ کے ججز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے نوید احمد، محمد اشرف، بلال اسلم، اقبال جوید، افتخار امن، سکندر عباس، مبشر اقبال، ذوالفقار علی، کیسر نوید، قاسم علی، فرقان علی ججز کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ان کے بعد پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعام بھی دیے گئے۔ تحصیل بھر میں پہلی، دوسری پوزیشن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول قادرآباد نے اپنے نام کر لی۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول قادرآباد کے اساتذہ نے مقابلہ میں حصہ لینے والے طلباء کو انعامات دیے تاکہ طلباء کے حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاروق چودھری کو نور نیوز پھالیہ۔ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں 12 ربیع الاول کے حوالے سے اجلاس، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی، ڈائریکٹر آئی بی کی شرکت۔ مزید جانتے ہیں راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کی مناسبت سے اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی پولیس کراچی، ڈائریکٹر آئی بی، ڈی آئی جیز ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، سی آئی اے اور ٹریفک، ایس ایس پی اسپیشل برانچ، پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کے دوران منعقد کی جانے والی محافل اور جلوسوں کے ساتھ ساتھ حساس تنصیبات کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے دیے گئے احکامات کی روشنی میں مروجہ قانون اور ضابطہ اخلاق کی مکمل پاسداری کو ہر ممکن پر یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے امن امان کی صورتحال کو یقینی بنانے، کسی بھی قسم کی مذہبی منافرت اور شدت پسندی پھیلانے اور عناصر پر کڑی نظر رکھنے کے حوالے سے حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے 12 ربیع الاول کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قصور کے تھانہ اے ڈوین پولیس کی اسٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے خلاف کارروائی۔ بلال عرف ٹولی ٹکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزموں سے 1 لاکھ روپے، 8 مسروقہ موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ دوران تفتیش ڈکیتی کی 6 موٹر سائیکل چوری کی 8 وارداتوں کا انکشاف ہوا۔ ڈی پی او صہیب اشرف نے اچھی کارکردگی پر تھانہ اے ڈوین پولیس کو شاباش دی ہے۔ کینٹ پولیس کی اہم کارروائی، ڈکیتی کی واردات کا ڈراپ سین، مالک کی رقم غبن کر کے ڈکیتی کا ڈرامہ رچانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے 10,18,000 روپے برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے عامر اخلاق کی اس رپورٹ میں۔ کے علاقہ میں الحبیب بینک میں دکان کا چیک کیش کرانے کے لیے جانے والے اعجاز احمد نامی ملازم نے نیت بدلنے پر ڈکیتی کا ڈرامہ رچایا، جس کی اطلاع جب پولیس کو ملی تو ایس ایچ او آصم محمود کی سربراہی میں کیس کے آئی او ساجد شاہ نے ٹیکنیکل طریقے سے واردات کو ٹریس کر کے ملزم ڈھونڈ نکال لیا، جو خود یہ دکان میں ملازم تھا، جس کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے رقم برآمد کر لی۔ اس حوالے سے پولیس نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، موقع ملاحظہ کیا، وہاں سے شاتیں اکٹھی کی تو حالات ہمیں مشکوک نظر آئے۔ ہم نے اس درخواست دہندہ سے انویسٹیگیشن کی۔ دوران انویسٹیگیشن اس نے تسلیم کیا میں نے خود ہی 10 لاکھ چرائے ہیں۔ پھر مدعی مالک کو اطلاع دی، مالک آ گیا، مالک سے درخواست لکھوائی، پھر ایف آئی آر درج کی۔
10 लाख फिर बरामद किए। मुलज़म जो मौजूद है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इन्होंने मुझे पैसे दिए जो मालिक है मेरे, तो मतलब चेक पे जैसा वो कैश मैंने करवाया है, कैश करवा के तो निकला हूँ जब बैंक से, तो मेरी बस नीयत में फतूर आ गई। तो आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है? हाँ जी, विंस ट्रेडर्स के नाम से है। ठीक है। ये कितने अरसे से आपके पास काम कर रहा है ये मुलाजिम? ये तकरीबन 1.5 साल से हमारे साथ काम कर रहा था। किस चीज़ का करता है? ये अपना मेडिसिन का काम करते हैं, बोर्ड बाज़ार से लेके तो ठीक है सेल करते हैं। तो अब आपके साथ ये आपकी रकम रिकवर हो गई है? जी बिल्कुल रिकवर हो गई है, और मैं मशकूर हूँ थाना कैंट का कि उन्होंने मेरे साथ भरपूर ताउन किया है और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, और मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मैं थाना कैंट का बहुत मशहूर हूँ, और CPO सैयद शहजाद नदीम साहब की मॉनिटरिंग में जो थाना कैंट वालों ने ये बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फतेह जंग में कायम सस्ता बाजार टैक्सी स्टैंड में तब्दील हो गया। अशराए खुरोनोश के बजाय बाजार में गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती हैं। मज़ीद जानते हैं इब्रार हुसैन साबिर की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग मियां मुराद हुसैन ने कुकारा की जानब से शहरियों को सस्ते दामों शय खुर्दनोश की फराहमी के लिए कायम किया गया सस्ता बाजार टैक्सी स्टैंड में तब्दील होकर रह गया। अशय खुर्दनोश की फराहमी मुमकिन नहीं हो रही। सरकारी आटा की इंतहाई का मकदार बाजार में आती है जो मतलूबा तलब पूरी नहीं करती। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि सस्ता बाज़ार को मुकम्मल तौर पर फ़ाल किया जाए और वहाँ पर कायम गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग मियां मुराद हुसैन ने ओकाड़ा के इलाके गाजियाबाद में गटर उबल पड़े, गंदा पानी गलियों बाजारों में बहने लगा। शिकायत के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला गफलत की नींद से बेदार ना हुआ। गंदे पानी से उठने वाला ताफून वबाई अमराज का बाइस बनने लगा है। बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। गंदे पानी ने नमाजियों का मस्जिद तक जाना मुहाल कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ओकाड़ा के CEO और अमला तक कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में OPD मुकम्मल तौर पर बहाल है। हस्पताल तर्जुमान के मुताबिक मेडिकल, गैस्ट्रो, सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक, स्पाइन, ENT, स्किन और IOPD में डॉक्टर्स और दीगर अमला मौजूद हैं। HMC की एमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बिला तातुल सहूलियात फराहम कर रहे हैं। OPD बंद होने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद के निजी होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार, सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली अरशद की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के निजी होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें नामवर सियासी और मजहबी रहनुमा ने शिरकत की। सेमिनार का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। इस सेमिनार के मेहमान खुसूसी साहबजादा पीर खालिद सुल्तान अल कादरी थे। सेमिनार से खिताब करते हुए सियासी और मजहबी रहनुमाओं का कहना था कि जमात अहले सुन्नत ने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के हसूल के लिए अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं और इन्हीं कुर्बानियों का तकाजा है कि इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत की जाए। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान इस सिलसिले में इस्तेकाम पाकिस्तान के सफ़र को हमेशा से जारी रखे हुए हैं और जारी रखेगी। हमारा वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। और सेमिनार के आखिर में मुसलमानों से अपील की कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ठोस मनसूबा बंदी की जाए और मुश्किल में फंसे अपने बहन भाइयों और बुजुर्गों और बच्चों की मदद की जाए ताकि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राज़ी हो। कैमरामैन सुलेमान के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। डिस्ट्रिक्ट कंबर शौदात कोट में सैलाब मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला, DHO समेत हेल्थ इंतजामिया गायब है। मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कंबर शौदात कोट तहसील कुबो सईद खान UP डोरी के कोट आदम खान लोंगानी मक्सी में। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएं तो आप देख सकते हो ये कोट आदम खान लोंगानी मक्सी के काफ़ी घर जो है ना सैलाब की वजह से गिर गए हैं। यहाँ के जो कुछ लोग हैं वो अभी भी रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि
सैलाब आने के बाद पानी तो अभी यहाँ से कम हो गया है, लेकिन जो इंतजामिया है डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादकोट की अभी तक वो भी यहाँ पे नहीं आया। काफ़ी लोग बीमारी की वजह से मुतासर हुए, मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगू, और जो DHO डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादकोट है वो भी यहाँ तक उसकी टीम भी नहीं पहुँच पाई है। और इसी हवाले से मेरे साथ गोठ आदम खान लोंगानी मक्सी के कुछ लोग मौजूद हैं। आइए मज़ीद हम उनसे बात करेंगे, मज़ीद हम उनसे पूछेंगे क्या वजह, क्यों नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ जो नवाबजादा मीर नादर मक्सी की जानिब से लोगों को राशन भी फराहम किया जा रहा है, इसी हवाले से हम लोगों से इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। घर के आयो सैलाब मींहुं आयो, सैलाब आयो, असांजो न बचा टपड़ न बचो को खट न को छा न था, असां दर फदर आहियूं, असां बर्बाद थियल आहियूं, असांजो अच्छे हालत ॾिसो त छा हालत आहे। मसला यही है, यहाँ जब तक पानी आ गया बरसात की वजह से सारे गांव गिर गए। आदम खान कोट आदम खान मक्की लंगवानी में नहीं खाने के लिए कुछ है, नहीं बीमारी के लिए कुछ पैसे हैं, कोई जाके इलाज करवाए, कोई नहीं डॉक्टर आते हैं, कोई भी नहीं आता इधर। बस कोई सारा हुकूमत का इंतजामिया कोई नहीं। नवाबजादा नादर खान मक्सी की तरफ से जो मिला हम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ हम आपस में बांट के थोड़ा खा रहे हैं। जी, हमने कोट आदम खान लोंगानी मक्सी के जो रहवासी थे हमने उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि अभी तक यहाँ जो है ना हेल्थ के हवाले से कोई भी नहीं आया। इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों में यहाँ के जो लोग वो मुब्तला हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो नवाब नादर मक्सी ने कुछ राशन। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज फराइश ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम साउथ पंजाब अंडर 16 बॉयज स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। भावलपुर रिंग स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताही तकरीब डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज फराइश ने शाल लगा कर किया, जिसमें चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियां अजहर जवेद, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मसूदुल हसन जवेद, नुमाइंदा PCB मोहम्मद नुमान, DEO एजुकेशन फोकल पर्सन रशीद अहमद चीमा, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर आमिन महमूद, स्कूल के तुलबा, उस्ताजा, स्पोर्ट्स शाकीन और मीडिया के नुमाइंदान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट चैंपियनशिप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इन्होंने कहा कि अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप के इनकाद से नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलेगा। DEO एजुकेशन फोकल पर्सन रशीद अहमद ने बताया कि अंडर 16 बॉयज़ स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप में 12 टीमें शिरकत कर रही हैं, जिसमें से 9 टीमें सरकारी स्कूलों के तुलबा की और 3 टीमें प्राइवेट स्कूल के तुलबा पर मुश्तमिल है। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज फराइश का खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया। इन्होंने नौजवान खिलाड़ियों में किट्स भी तकसीम की। कैमरामैन टीम के साथ उसामा मुगल, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डायरेक्टर अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन्नू मलिक दिलनवाज खान वज़ीर का टाउनशिप के मुख्तलिफ सेक्टर्स और पार्क्स का दौरा रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने की हिदायत। मज़ीद जानते हैं फ़िदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। के मुताबिक डायरेक्टर अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बन्नू मलिक दिलनवाज खान वज़ीर ने बन्नू टाउनशिप के मुख्तलिफ सेक्टर्स और पार्क्स का दौरा किया। दौरे के दौरान मलिक दिलनवाज खान ने पार्क्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और पार्क्स में तज़ीन व आराइश के बारे में खुसूसी हिदायत जारी की। इन्होंने टाउन स्टाफ को खुसूसी हिदायत की कि अपने रोज़ाना की हाज़िरी को यकीनी बनाएं। इस मौका पर मलिक दिलनवाज खान का कहना था कि आवाम को सहूलत देने के लिए बन्नू टाउन के पार्क्स को रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ किया जाएगा और तमाम मसाजिद और मार्केटों के सामने सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से जारी करदा फ़ंड से सीवरेज लाइन, बाउंड्री वाल और नए रोड्स के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि आवाम को खुशगवार माहौल में सैर व तफरी करने का मौका। खान का बुखारिया के अमीर सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी उम्रे की अदायगी के बाद कराची पहुँच गए। मुरीदैन ने एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। बुखारिया के अमीर सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी उम्रे की अदायगी के बाद कराची पहुंच गए। मुरीदैन ने एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। कराची एयरपोर्ट से काफिला रिंग रोड, शाह फैसल, मिलीनियम माल से होता हुआ गुलिस्तान जोहर पहुंचा। अमीर सैयद शरफुद्दीन नवासी का कहना था कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न जोश व खरोश से घर घर चरागा करें। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें।
मदीना शरीफ में इस वक्त बहार रहमत बरस रही है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा भाईचारगी की फिजा को बरकरार रखने, सीरत पर अमल करते हुए अपने अजीज़ो अकारिब में फैलाए। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आका के मिलाद की महफिल घर घर सजाएं। अरशद महमूद मुगल, कोहिनूर न्यूज़, कराची। नौढेरों में दरियाए सिंध बड़ा पतन के मकाम पर मछली का शिकार करते हुए नवाही गांव का रिहायशी 30 साला गुलाम कादिर डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सके। आपको बताएं कि नौढेरों में दरियाए सिंध बड़ा पतन के मकाम पर मछली का शिकार करते हुए नवाही गांव का रिहायशी 30 साला गुलाम कादिर डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जान बचाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सके। संजयपुर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अहले इलाका ने सख्त तरीन सजा देने की अपील की है। मज़ीद जानते हैं जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजयपुर अल्लाहबाश कॉलोनी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास राशन प्रोग्राम का झांसा देकर फराडिये सादा लोगों को लूटने लगे। अहले इलाका ने 3 दिन से जारी फराडिये को बेनकाब करके थाना कोटसल पुलिस के हवाले कर दिया। अहले इलाका ने SHO थाना कोटसल से अपील की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फराडिये ने एक बूढ़ी औरत को भी ना बचका। उसने 7,000 रुपये निकाल कर बूढ़ी औरत को 3500 रुपये दिए। इस मौके पर बूढ़ी औरत का कहना है कि मुझे मेरा बकाया रकम भी वापस दिलवाई जाए। अहले इलाका का कहना है कि ऐसे लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि सादालू इंसान इन लुटेरों से बचे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की हिदायत और DSP सर्कल चिश्तियाँ फयाजुल हक की सरबराही में SHO थाना शहर फरीद राव शाहिद हमीद की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से मुलजिम गुलाम नबी शेख से 1 मन भंग बरामद कर ली। मलिक अरशद से 550 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से DSP फयाजुल हक का कहना था कि चिश्तियाँ सर्कल में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुजरिम मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। किसी को मंशियात फरोशी के साथ मुआशरे में जराइम फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब साहिबजादा हामिद रज़ा की बहावलपुर डिवीजन में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए अमन कमेटी के इजलास में शिरकत। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बोर्ड पंजाब साहिबजादा हामिद रज़ा की बहावलपुर डिवीजन में जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतजामात का जायज़ा लेने के सिलसिले में कमिश्नर ऑफिस कमेटी रूम में मुत्तहिदा डिवीजन अमन कमेटी के इजलास में शिरकत। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जंगीर अनवर ने बहावलपुर डिवीजन के तीनों जिला में रबीउल अव्वल के जुलूस और महफिल मिलादुन्नबी के सिलसिले में अमन अमान और दीगर इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जायदपुर हिदायत, जबकि वीडियो लिंक के जरिए डिप्टी कमिश्नर रीमर खान, मूसा रजा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भावन नगर अब्दुल जब्बार गुजर और जिला के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अमन कमेटी के मेम्बरान ने शिरकत की। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने कमेटी रूम में मुनक्किदा इजलास में इलामा रियाज अहमद ओवैसी, इलामा अब्दुल रज़ाक शेख, मुफ्ती जुवैद, मुस्तफ़ा सईदी, मखदूम सजाद, उस्मानी अफजल साबरी, इलामा अब्दुल गफूर सईदी, डॉक्टर अरशद वर्ग, सदर अंजुमन ताजरा नाफिज मोहम्मद यूनुस हसन राहत और दीगर मेम्बरान अमल कमेटी ने शिरकत की। रबीउल अव्वल का जुलूस और महफिल मिलादुन्नबी में सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। साहिबजादा हामिद रज़ा चेयरमैन उलमा बोर्ड पंजाब ईद उल मिलादुन्नबी तक़रीबात अक़ीदा और एहतराम से मनाई जाए। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक बयान की जाए। साहिबजादा हामिद रज़ा चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि सोशल मीडिया में बगैर तस्दीक के रद्द-ए-अमल न दिया जाए, इससे मनफी असरात मरतब होते हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने अपने अपने ज़िला में ईद उल नबी के सिलसिले में जुलूस और महफिल मिलाद की सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम बारे आगाह किया। बाज़ाम मुल्क की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। ऑल पाकिस्तान टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन सरापा एहतजाज है। मुफ्ती मलिक मुमताज़ और साथी की रिहाई का मुतालबा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं टंडुवाला यार से नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। 6 सितंबर को डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मगवी टैक्सी ड्राइवर मलिक मुमताज़ और उसके साथी की रिहाई के लिए टंडुवाला के टैक्सी ड्राइवरों की जानिब से पुरअमन एहतजाज कराया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए बाबर खानज़ादा गुलाम कादर ने कहा कि मलिक मुमताज़ की रिहाई के बदले डाकुओं की जानिब से वीडियो वायरल की गई है, जिसमें डाकुओं ने तावान की मद में 30 लाख रुपए नकद और 1 अदद वीवो के मोबाइल की डिमांड की है। इन्होंने कहा कि टैक्सी ड्राइवर मलिक मुमताज़ निहायती गरीब है, रोज़ कमाने वाला खाने वाला शख्स है, 30 लाख कहाँ से लाए।
टैक्सी ड्राइवरों ने हुकूमत पाकिस्तान रियासती कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील की कि मलक मुमताज़ की रिहाई के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरकार लाते हुए मलक मुमताज़ उसके साथ जाफराबाद में झुठेर शाह को पानी की फराहमी बंद, पानी की बूंद बूंद को तरसते अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। जाफराबाद में सैलाब की तबाहकारियाँ और अवामी मुश्किलात में इजाफा होने से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम है। साफ पीने के लिए पानी नापैद होने की वजह से साबिक DSP नसीबुल्लाह खोसा की क़यादत में झुठेर शाह को पानी की फराहमी ना होने की वजह से डेरा लाया तो सोबतपुर रोड ब्लॉक कर दिया। रोड बंद होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहजाज और धरना वालों ने इरिगेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मेरे इलाके में कोई DC की तरफ से AC की तरफ से यानी कि किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं दी है। रास्ते उन्होंने शिकाफ लगाए, बाद में बंद भी उन्होंने नहीं किए। पानी भी उनके पास नहीं है और इसके साथ साथ माल मवेशी भी मर रहे हैं, प्यास से भी मर रहे हैं। घास तो वैसे भी नहीं है हमारे पास, उसके लिए मर रहे हैं। थोड़े बच्चे कच्चे जो फसल हैं वो भी अभी जो सूख गए हैं और अभी पीने का पानी नहीं है, गुसल का पानी नहीं है। हमारे माल मवेशी जो है ना गंदा पानी जोहर का पीकर वो भी मर रहे हैं। भी एक्शन इरिगेशन इतना झूठा शख्स है जो कि वायदा करता है लेकिन किसी किस्म का वायदा पूरा नहीं करता। वो उधर झुठेर शाख में हमें पानी देता तो आज इस गर्मी में हमें यहाँ पर आकर खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं। कल जो हमारा वारा है, हमारा हिस्सा है, वो चीज़ हम लोग मांगते हैं। वो चीज़ हमें देंगे तो हम लोग फिर एहतजाज अपना ख़त्म करें, तो नहीं तो ये एहतजाज हमारा 3 दिन हमारा वारा है, हमारा जारी रहेगा। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ झुठेर शाह के रहने वालों ने एहजाज और धरना देकर बैठ गए हैं, क्योंकि 1.5 माह से झुठेर शाह को पानी की फराहमी और इंतजामिया की जानिब से इमदादी रिलीफ और साफ पीने के पानी की वजह से कौमी शाहरा बंद कर दिया। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई। इरीगेशन से मुज़ाकरात के बाद रोड खोल दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अता खोसा, कोहिनूर न्यूज़, जाफराबाद। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर, गंदम का स्टॉक खत्म हो गया। सरकारी तौर पर आटे की फराहमी बंद कर दी गई है। मजीद जानते हैं हरीपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर आ गई। हजारा बर की तरह हरीपुर में भी आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबाई हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए फूड डिपार्टमेंट को फराहम की गई गंदम का स्टॉक खत्म हो गया है, जिसकी वजह से गरीब अवाम को मोबाइल गाड़ियों के जरिए फराहम किए जाने वाले सस्ते आटे की तरसील भी अब बंद हो चुकी है। आज जो ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि हरीपुर की सतह पे तो कि आज गोदाम खाली है और आज के बाद उनके पास स्कीम का आटा देने का के लिए आटा नहीं है और इस मसले में सूबाई हुकूमत ने कोई इक़दाम भी नहीं किए, तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पर हमारे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, तो क्यों पंजाब से आटा नहीं आ रहा, क्यों वहाँ से गंदम नहीं आ रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हमारे सूबे में पिछले 10 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, तो क्यों उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की? अगर इन ख़बरों में सदाकत हुई और वाकई हरीपुर के अवाम ख़ासकर और अमूमन पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से अगर ये सहूलत छीनी गई तो इस पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक हरीपुर की कुल आबादी की ज़रूरत रोज़ाना 40,000 थैला है, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर 5,740 थैले तकसीम किए जाते रहे, जिनसे सिर्फ 15% अवाम की ज़रूरत पूरी हो रही थी। हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम 50% गरीब अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरीपुर। सरकारी नरखनामे की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने 8 दुकानदारों को पाबंद सलासिल कर दिया। मसीह जानते हैं एबटाबाद से उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद तहसील लौरा प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी, मनमाने रेट्स पर ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद सकलैन सलीम ने रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर लौरा में 8 दुकानदारों को पाबंद सलासिल करते हुए FIR दर्ज की। शहरियों को रेट लिस्ट के मुताबिक अशियाए ख़ुरनोश की फराहमी यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एबटाबाद सकलैन सलीम ने तहसील लौरा का दौरा किया। उन्होंने फ्रूट, सब्जी, जनरल स्टोर्स, गोश्त, चिकन और दीगर दुकानों का मुआयना किया और मनमाने रेट्स की बिना पर 8 दुकानदारों पर FIR दर्ज करके पाबंद सलासिल किया। सकलैन सलीम ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और किसी को अपनी मर्जी के रेट नहीं लगाने दिए जाएंगे। उबैदुर रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ TV, एबटाबाद।
اسسٹنٹ کمشنر فیاض احمد جتالہ کی سنجے پور میں سبزی فروشوں کے خلاف کارروائیاں، گراں فروشی پر متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کر دیے گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کسی دکاندار کو زائد قیمت پر سبزیاں فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، خلاف ورزی کرنے پر آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ رینالہ خرد میں نجی ویلفیئر کونسل کی خصوصی کاوش سے تارے شاہ قبرستان روڈ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے انجینئر اعظم بھٹی کا شکریہ ادا کیا گیا، جنہوں نے لاکھوں روپے لگا کر روڈ تعمیر کروایا۔ تارے شاہ قبرستان روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ جب کوئی وفات پا جاتا تو میت کو قبرستان لے جانے میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کا چلنٹن مارکیٹ کا دورہ، صفائی ستھرائی اور گرین بیلٹ کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے دکانداروں سے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ مارکیٹ کی صفائی ستھرائی کا عمل 3 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ پی ایچ اے انتظامیہ کی جانب سے چلنٹن مارکیٹ روڈ گرین بیلٹ پر شجرکاری بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور ڈاکٹر خالد محمود ارائی کا کہنا ہے کہ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے اسکریننگ کا کیمپ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر خالد محمود ارائی نے کہا کہ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی اسکریننگ کیمپس کا سلسلہ جاری ہے بہاولپور میں، اور HIV ایڈز کے اسکریننگ کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو میرا یہ میسج ہے، احتیاط کریں، دوسروں کی چیزیں استعمال نہ کریں، اپنی علیحدہ استعمال کریں۔ اس کا ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد محمود ارائی نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر خالد محمود ارائی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز۔ تو ایڈز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایڈز ایک موذی مرض ہے جس میں قوت مدافعت والا سسٹم بالکل ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو مختلف بیماریاں اٹیک کر لیتی ہیں۔ تو ایڈز ایک شخص سے دوسرے شخص کو جو ذرائع ہیں ان میں ایک تو یہ سرنجز ہیں کہ ایک ایڈز والے کی دوسرے کو لگائی، اور جو حجام وغیرہ بلیڈ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی شفٹ ہو سکتی ہے، اور دوسرے جنسی تعلقات سے بھی یہ شفٹ ہو جاتی ہے ایک مریض سے دوسرے میں۔ تو ایڈز کو کافی حد تک ایک ہمارا پنجاب کا ایڈز کنٹرول پروگرام ہے، اس کے تحت اس کو کافی کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کا ایک سلسلہ ہم نے چلایا ہوا ہے اسکریننگ کا۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی TB کے پیشنٹ ہیں اور خصوصاً بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ سینیٹر کامران مائیکل نے رہنما نون لیگ کو مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں نارنگ منڈی سے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے اپنی سالگرہ منائی، خوشگوار موڈ میں کیک کاٹا۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین کے ساتھ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ انہوں نے مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ رانا تنویر حسین کے دوستوں نے ان کے لیے دراز عمر کی دعا بھی کی۔ قمر گلاٹی، نارنگ منڈی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔